Welcome on Data Communication Networks lecture number 3. Previously we have seen the basic block diagram of communication model. So we start to new topic. Let us recap once again. We having the previous lectures 4 issues. First is data communication and how conceptual piece of data communication is taking place, and we have seen the different diagrams and pictorial representation I have given to you in the previous lectures, and we have cleared that the communication is only taking place when the two or more than two communicating devices are connected to each other. When we communicate, we are actually, if we recap, this is the basic block diagram where you can see this is a, you can see this is a sender, this one is receiver, the connecting media and masses, and this are the protocols. Same protocols are at the two connecting ends. In this previous lecture, if you remember, when we communicate, we are actually sharing the information or by the means of this uh, messages, by the means of information is carried out in the form of messages. So this sharing either can be, you can say it is either local or it can be remote. In this local, when you talk about the communication is only between the uh, point of contact, point to point contact, means face to face, when the distance is very close, proximate to very near to each other, face to face. Such a communication is known as local communication, when the two end parties are very near to each other, when the these two ends, sender and receiver, are very far place, you can say on the continental of the other earth place. So at that time the communication is known as the remote communication, and the whatever the sender or receiver, they have exchanged the data. You can say it is in the two form, either it is analog or either it is the digital. So agar if you remember, the word data refers to information presented in whatever form is agreed upon by the these two end parties, this and this parties, uh, and they are creating and using this data, while they are also exchanging and receiving the data by means of responding or they sharing their acknowledgement. This is the data communication. So data communication are the exchange of data between the
two connecting devices, some form of this transmission media such as wire cable. For data communication to occur, the communicating devices must be part of a communication system made of a combination of hardware and software, or you can say the hardware is nothing but is the physical equipment which carries the your interface your this signal and deliver to the other ends. Software is the program which is written by in the form of computer on a internet. If you check this system is work, how we can say this system is work, and in or you can say how you going to develop this such type of data communication network while you are connecting the two machines and they are actually exchanging the data, and we feel we are exchanging the data. No, the machines are doing all the jobs. We are only given to inputs and receiving the outputs, and other processing is taking place in this communication data communication networks. So how we develop this model and how you judge this model is working. You know, when you are in the classroom, you are giving your examination semester exams, and how you judge how others are known you have passed this semester and other semester only on the basis of evolution. Evaluate your performance or your characteristics during the entire course. You are answering the questions, you are attending the examination and practicals. So such thing is happened with this data communication. We check we check the effectiveness of this data communication system depend on the four fundamentals characteristics. Four fundamental of characteristics. Now we are going into next topics. Before we are check whether this information is valid or not, this effectiveness of data communication is actually happened or not, we are trying to check the certain points. There are the some points to have to check this. First point is the data must be delivered to the correct destination. Whatever the data you have sent through the internet, that must reach your select destination. So the point is it should be delivered the data to the correct destination. So this is the destination, so we can write correct
correct destination. This is the first effectiveness characteristics. Second is very important. If we develop the data communication network, we have to accurate. There should be accuracy. System must delivers the data with a accuracy. क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है। एक्यूरेसी यहाँ वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट डेस्टिनेशन। अगर आपने किसी को कोई गिफ्ट भेजा और आपका गिफ्ट आपके दोस्त के पास ना जाके कि कहीं और दूसरी जगह चला गया, तो वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। तो अगर हम डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहे हैं तो हमारा पहला चॉइस तो यही होना चाहिए कि हम जो भी मैसेज, जो भी फ्रेम, जो भी डेटा भेजें वो हमको उसी जगह पे जाना चाहिए जिस जगह पे हमने उसको भेजना है। दूसरा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि हमने अपने डेटा पे हमने ये कहा कि हमको इस काम को करना है विद इन दिस 5 मिनट्स, और वो डेटा जो उस टाइम पे हमको मिला ही नहीं, तो हम उसको कैसे सेंड करेंगे। किसी ने हमसे ये कहा कि हमको 5 बजे शाम को हमको आप ये डेटा भेज देना, और हम उस डेटा को करेक्टली भेज नहीं पाए, तो उसकी एक्यूरेसी नहीं रही, वो डेटा वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, ये एक नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क है, और ये सारे जो हैं ये आपके नोड्स हैं जिसको हम लिंक्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम राउटर्स बोलते हैं। और इनके बीच में इंटरकनेक्शन होता है और इसी के बीच में हमारे डेटा ट्रेवल्स करते हैं। अगर एक्यूरेसी ना हो, जिस डेटा को हमने भेजा और वो डेटा वहां तक आया ही नहीं, एक्यूरेट नहीं आया, और हमने सपोज हमने कहा कि हम 500 पेजेस का एक पीडीएफ आपको भेज रहे हैं। अब 500 के पेजेस में से हमारा पेज नंबर 401 पेज जो हमारा है 401, इस 401 पेज को हमने डेस्टिनेशन पे नहीं पाया। अब आपके लिए ये पीडीएफ कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये एक एरर क्रिएट कर दिया। अब जो है आपके पास 399 तो आपके पास सही पेजेस हैं, लेकिन आपके पास 401 पेज ना होने के बाद जो 402 के बाद के जो पेजेस हैं वो कोई मायने नहीं रखते। इसलिए एक्यूरेसी की ज़रूरत है। हमें यहाँ पे ये चेक करना होगा कि जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं, जिस डेटा को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, जो पेजेस हमारे पीडीएफ के जो जिस फॉर्म में हमने सेंड करने थे पीडीएफ, वो पीडीएफ हमारे दूसरे एंड यूज़र के पास पूरे 500 पहुँचे हैं कि नहीं, ये पेजेस वहाँ पे हमारे वहाँ पे डिलीवर्ड हुए हैं कि नहीं, और इसी को कहते हैं एक्यूरेसी। अगर इसमें से कोई भी एक पेज, आपका कोई भी एक पेज मिसिंग है, कोई भी एक पेज अगर आपका मिसिंग है, तो उस एंड पे यहाँ से इसको एक एक्नॉलेजमेंट भेजना चाहिए कि आपका ये पेज यहाँ पे मिसिंग है। और ये तब क्या करेगा कि चूंकि उसने 399 पेज तो आपके सेंड कर दिए हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ वही पेज भेजना है जो 401 है। क्योंकि जब भी डेटा हम यहाँ से भेजते हैं ये एक सीक्वेंस के फॉर्म में चलता है, और उसी सीक्वेंस पे ये यहाँ पे रीअरेंज होता है। तो अब इनके बीच में, इस सिस्टम के पूरे ट्रांसमिशन के बीच में और भी दूसरे कई सारे वर्किंग मॉडल्स होंगे, और भी दूसरे सारे लोग वर्क कर रहे होंगे, और भी दूसरे सारे सिस्टम्स नेट से कनेक्ट होंगे। तो जब डेटा हम इसको सेंड करते हैं तो सबसे पहले वो अपने नेबरिंग डेटा के पास जाता है,
चूंकि डेस्टिनेशन इस एड्रेस इसके पास नहीं है तो ये क्या करेगा, ये स्टोर करके आगे फॉरवर्ड कर देगा, ये आगे के नोड्स को फॉरवर्ड कर देगा। इस तरह से नोड्स जाते जाते एट द एंड ये अपने करेक्ट रिसीवर एंड पे पहुंच के डेस्टिनेशन को डिलीवर हो जाता है। यहाँ पे ये चेक करेगा और फिर से एक आपको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। इस नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के मिलते ही ये आपके आगे के सब्जेक्ट्स में है, जिसको हम डेटा कम्युनिकेशन लिंक में इसको बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है, इस नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलते ही हमारा सोर्स जो है इसके बीच में कहीं ना कहीं 399 जो उससे पहले के जो कनेक्टिंग जो डिवाइसेस होंगे उनके पास ये 399 पेज है। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि 400 तक के पेजेस तो स्टोर हैं, जो नेक्स्ट पेज जो मिसिंग है वो है 400। तो यहाँ के बाद का जो पेज है वो इसको रीसेंड करेगा इस डेस्टिनेशन को, और जहाँ ये रीसेंड होगा ये इस पे आएगा और फिर से ये सब एक सीरीज में पेज 1 से लेके 500 तक लगेंगे और फिर ये चेक होगा, एरर कैलकुलेट होगी, तब हम कहेंगे कि मेरा सिस्टम एक्यूरेसी में है, सही वर्क कर रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है। एक्यूरेसी का मतलब कम नहीं होना चाहिए, जो चीज़ हमने कही है, जो चीज़ हमने भेजी है उसमें कोई लॉस नहीं होना चाहिए, उसमें कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, वो एक्यूरेसी है। और इसके यही इस कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस, यही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम इसको बना सकते हैं, इसको हम एक तरीके से इसको हम डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो हमारा सिस्टम करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, एक्यूरेसी पे पहुंच गया, तो थर्ड जो पॉइंट है वो है टाइमली लेसनेस। अब इस चीज को आप अच्छे से देखें, मैं ये चीज चूंकि आपके क्वेश्चन पेपर में भी आएगा, टाइमली लेसनेस का मतलब क्या है। टाइमली लेसनेस, टाइमली लेसनेस का मतलब क्या होता है कि इसके लिए एक एग्जांपल ले लो कि द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा इन टाइमली, otherwise if we delivered the data after the time it is totally useless। एग्जाम्पल क्या है कि आपका ज्वाइनिंग, मान लो आपको जॉब मिला है और आपकी जॉब कल सुबह 9 बजे है और आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको नहीं मिला 9 बजे तक, ये मिला 9 बजे के बाद, तो ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जो डिलीवर्ड हुआ है दूसरे नोड से आपके पास आपके डेस्टिनेशन पे है, ये यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एग्जाम में बैठे हैं और आपने 2 दिन पहले ही अपने किसी सोर्स के जरिए या नेट के थ्रू आपने बुक मंगाई और एग्जाम आपका 2 दिन के बाद है, बुक आपको दूसरे दिन मिलती है। तो इस ऐसे जो टाइम पे जो आपको जो डेटा मिल रहा है या जो प्रोडक्ट मिल रहा है या जो भी वॉट एवर द फॉर्म, वॉट एवर द योर यूटिलिटीज आर, you have to utilize during this data communication network, that is totally wasteless, useless, so it should be in time। जब कभी भी आप डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाएंगे तो आपको करेक्ट डेस्टिनेशन भी चाहिए, आपको एक्यूरेसी भी चाहिए और टाइमली लेसनेस भी चाहिए। अब फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जिटर, JITTER, जिटर। ठीक है, जिटर जो है ये एक फिनोमेना है कि क्या होता है कि जब हम बफरिंग यानी कि डाउनलोडिंग करते हैं इंटरनेट के थ्रू, और बफरिंग करने के बाद जब हम उस चीज को देखते हैं, स्पेशली वीडियो को, तो हमने ये देखा कि वीडियो देखते वक्त होता क्या है कि
पिक्चर स्लो चल रही है, जिसको 30 नैनो सेकंड में आप तक मिलना चाहिए था। इसके साथ जो ऑडियो का जो साउंड आया है, वो साउंड आपके लिए उस समय पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे नहीं मिल पाया, और दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन न होने की वजह से पिक्चर पहले चली गई और आवाज बाद में आ रही है, या आवाज पहले आ गई, पिक्चर ही नहीं आई। जहां पे मिसमैचनेस हो, देयर इज ए वेरिएशन in the packet arrival time, and this is only due to uneven delay in the form of both audio और वीडियो का पैकेट और ऑडियो का पैकेट ये अलग अलग आके जब कंबाइंड होते हैं, जब सुपर इम्पोज किया जाता है, सिंक्रोनाइज किया जाता है, तब हमको जाके ये चीज प्राप्त होती है। और इनके बीच में गैप होने की वजह से हम उस जो ड्रॉबैक है, जिसके बीच में अभी आपने प्रीवियसली चेक किया होगा कि नेट पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि नेट स्लो चल रहा है और आपका जो वीडियो है, आपने कोशिश की, आवाज़ आई है, लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, आवाज़ में धीरेपन है, आवाज़ लड़खड़ा रही। ये सारे फिनोमेना जिटर के अंदर आते हैं। इसीलिए जिटर भी एक इफेक्टिवनेस सिस्टम का होता है। जब कभी भी हम कोई सिस्टम को अगर हम बनाएं, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में बनाएं, तो हमें इस नेटवर्क का ये पता होना चाहिए कि इसका इफेक्टिवनेस क्या है, ये कितना इफेक्टिव है, ये कैसे जानेंगे। इसके जानने के लिए हमको, इफेक्टिवनेस जानने के लिए हमको ये 4 पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। So effectiveness is having the 4 basic points, and this effectiveness is the characteristics of the this data communication network. इससे पहले आपने डेटा कम्युनिकेशन में जो आपने ब्लॉक डायग्राम देखा था, उस ब्लॉक डायग्राम के जो 5 कंपोनेंट्स थे, सोर्स, ठीक है, फिर आपका ट्रांसमिशन मीडिया, फिर आपका रिसीवर, फिर आपका डेस्टिनेशन, और ये इन 5 पॉइंट्स का जहाँ पे आपने देखा, जिसकी वजह से जिसको हम कहते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो जिस चीज़ का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले के केसेस में सिर्फ और सिर्फ वॉइस ही सेंड की जाती थी। अब वॉइस के साथ साथ हमको डेटा भी भेजना पड़ता है, और जो डेटा है ये एनालॉग भी है और डिजिटल भी है। और चूंकि एनालॉग और डिजिटल होने के वजह से डेटा कम्युनिकेशन, मैंने आपसे कहा था कि कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसकी इम्पोर्टेंस की वजह से ही डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को आज सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि किस तरीके से हम डेटा कम्युनिकेशन को, डेटा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे अपने इस क्या कहते हैं सिस्टम में। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास, हमको पता है कि इंफॉर्मेशन टुडे कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। इंफॉर्मेशन, जो मेरा मैसेज है, दिस इज द डेटा इज नथिंग बट इट इज द इंफॉर्मेशन। ओके,
और ये इंफॉर्मेशन आइदर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट जिसको आप अल्फाबेटिकल और बोलते हैं ए बी सी, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर ए बी सी टू जेड, नंबर्स भी हो सकते हैं, इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। तो जो कुछ भी डेटा हम इस डेटा कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं, उस सब के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्म होता है, अलग अलग तरीके से हम इसको दिखाते हैं। अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो ज़्यादातर किताबों में या आगे के जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा तो हम इस तरीके का डायग्राम यूज़ करते हैं। ये हमारा जिसे आप A4 साइज के पेज पे लिखते हो, जिस पे लाइनें हो या ना हो, ये इस फॉर्म में दिखाया जाता है। नंबर जो आप लिखते हैं 1 0 से लेकर जो डेसिमल नंबर है 9, टोटल आपके 10 डेसिमल नंबर है। इमेज का भी आपने देखा होगा कि एक बॉक्स जैसा बनता है, अगर चेक करेंगे तो एक इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर अंदर बना होगा, इस तरीके से लाइनें बनी होंगी और यहाँ पे एक डॉट होगा। अगर ऑडियो की बात करें तो एक स्पीकर ऐसे माइक बना के और इसको हम कह देंगे कि इट इज द सिंबल ऑफ ऑडियो। अगर हम बात करें वीडियो की तो आपने देखा होगा कि वीडियो के लिए भी एक पर्टिकुलर सिंबल का यूज किया जाता है, इस तरीके से बना होगा, ऊपर 2 ठे ऐसे और ये कटे रहेंगे। आगे की तरफ आपका वीडियो का मोड बना रहेगा, इसको हम कहेंगे ये वीडियो है। ये आइकॉन्स हैं, ये इमेजेस हैं जो शो करती हैं, ये टेक्स्ट के लिए यूज होता है, नंबर्स 0 से 9 तक यूज होता है। इमेजेस आपको इस फॉर्म में इमेजेस पिक्सल के फॉर्म में होंगी। ऑडियो आपका एनालॉग सिग्नल होगा, वीडियो आपका जो होगा वो कंटिन्यूअस डेटा है जिसमें आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। वीडियो क्या है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ द इमेजेस। हमको यहाँ पे ये हर एक चीज यहाँ पे डिटेल्स में पढ़नी है। पहले स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट। जो टेक्स्ट की बात हम कर रहे हैं बार बार, टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट क्या है, आपके कीबोर्ड में, आपके मोबाइल पे या आप कहीं पे कोई भी सिस्टम यूज करते हैं, जब आपको इनपुट देना होता है तो आप उसके जो कीज बनी हुई है, अल्फा न्यूमेरिक कीज जिसको कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, वो बने हुए हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कैपिटल में ए से जेड तक होंगे, स्मॉल में ए से जेड तक होंगे। तो जब हम जानते हैं कि जब हम डेटा कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो जो की हम प्रेस करते हैं, वो जो की है ए बी सी 9 8 10 0 सेमी कॉलन छोटा ब्रैकेट डॉलर, एक्चुअली ये मशीन नहीं समझती। ये बहुत जरूरी है, ये क्लियर करना जरूरी है कि डेटा रिप्रेजेंटेशन जब हम कर रहे हैं और जो जिसमें हम इसकी बात कर रहे हैं, टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, इमेज की बात कर रहे हैं, तो जो डेटा कम्युनिकेशन है वो आपका अल्फा न्यूमेरिक को नहीं समझता, नहीं, क्योंकि मशीन सिर्फ और सिर्फ कम जो मशीन है वो सिर्फ और सिर्फ जो समझती है जीरोस और 1, आइदर 0 हो या 1s का सीक्वेंस, वो सिर्फ इसी को ही समझती है, इसी भाषा को वो जानती है। और जब आप इस if you talk about this representation of text, so all the alphabets which are shown on your keyboards, on your mobile handsets, this alphabet is called it text. लेकिन जैसा मैंने कहा कि डेटा कम्युनिकेशन टेक्स्ट को
वो इस इनपुट को नहीं लेता, वो मशीन समझती ही नहीं, क्योंकि वो जीरो वंस के बारे में, जीरो वंस की लैंग्वेज जानती है, आप किसी और में भेज रहे हैं, वो किसी और में समझ रही है, तो कैसे वर्क होता है। तो क्वेश्चन आता है कि जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, जब इन्होंने दो डिफरेंट मशीन के बीच में डेटा को एक्सचेंज किया, तो कैसे डेटा एक दूसरे मशीन में जाएगा, कैसे वो हमारे जो हम हेलो या हाय या हमने ए भेजा, कैसे दूसरी मशीन पे यही सेम चीज उसकी भी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, कैसे, हाउ डेटा कैन बी रिप्रेजेंट, क्वेश्चन है ये। और आप लोगों ने कभी ये क्वेश्चन खुद से भी पूछा होगा, हाउ डेटा कैन बी रिप्रेजेंट इन द कंप्यूटर मॉनिटर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन, हाउ यू रिप्रेजेंट, कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, जब इंटरनल प्रोसेसिंग होती है तो मशीन ओनली रीड्स योर जीरो वंस कॉम्बिनेशन, बिट्स स्ट्रीम, बिट सीक्वेंस। तो क्वेश्चन इज how data can be represent। घबराइए नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। इन डेटा कम्युनिकेशन only zeros or ones are working, any alphabet like capital A to Z, small a to Z will be assigned, will be assigned a different sets of bit patterns। बिट्स आपने पढ़ा होगा, आपके डिजिटल ने, आपने डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ा है, डिजिटल के अंदर ये आप लोग जानते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये आपको मालूम होगा। तो जो बिट्स का जो पैटर्न है, वो पैटर्न डिजाइन किया जाता है, असाइन करते हैं, इज डिजाइन टू रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ, इफ यू टॉक अबाउट, हमको ये ए ही टाइप करना है, तो इसके लिए वो एक बिट सीक्वेंस असाइन करेगा, और इस असाइन सिंबल का हर एक सेट की अपनी कोडिंग होगी, उसकी एक अपनी कोड होगा, और इसी कोड के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं हर एक अल्फाबेटिकल 256, जितने 128 प्लस आज के करंट सिनारियो में 256 कैरेक्टर्स, इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। आपने नाम सुना होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सो this is finally converted into the ASCII code, ASCII कोड, ये आपने पढ़ा है। ए फॉर, आप जानते हैं, ए फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, आई इज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, when we pressing the keyboard, actually when you are type anything alphabetical, या कोई मैसेज या कोई व्हाट्सएप पे भी कोई आप टाइप करते हैं,
हम जो टाइप करते हैं उस टाइप के थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं. वी आर ट्रांसफरिंग दी ASCII's वैल्यू. We are transferring the ASCII's value. हमने क्या कहा, ऑल दी अल्फाबेट्स आर नोन एज टेस्ट. जो भी कुछ आप ए लिखो, चाहे डॉट लिखो, चाहे क्रॉस लिखो, चाहे चाहे माइनस लिखो, चाहे प्लस लिखो, अगर आप टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो आप अल्फाबेटिकल ही जाएंगे ए टू जेड. ये क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा. तो जब हम खाली इसकी बात कर रहे हैं, इसकी अल्फाबेटिकल ए टू जेड, जब कभी भी हम अल्फाबेटिकल में से कुछ भी टाइप करेंगे वो टेक्स्ट कहलाएगा. लेकिन डेटा कम्युनिकेशन में ये टेक्स्ट सेव नहीं होता, ये उसको रीड नहीं करता, वो उसको नहीं समझ सकता, क्योंकि वो जीरो वंस की भाषा जानता है. तो अब जीरो वंस की भाषा को समझने के लिए जैसे ही हमने अल्फाबेटिकल में ए टाइप किया, यहाँ पे आप ध्यान दें सारे बच्चे, जैसे ही हमने ए को टाइप किया कीबोर्ड के जरिए, कीबोर्ड को जैसे ही प्रेस करते हैं ए, और तुरंत ही वैल्यू असाइंड हो जाती है बिट पैटर्न की, बिट सीक्वेंस की, और ए के लिए एक बिट पैटर्न जनरेट होता है 01 0 0 0 0 0 1. जैसे हम ए टाइप करेंगे तो एक वी आर असाइनिंग द यूनिक बिट pattern. That pattern having the this sets of bit code. This code is A is assigned the unique pattern 0 1 0 0 0 0 0 1. So here you can see 0 1 0 0 0 0 0 1. After assigning this alphabetical tests, we giving the assigned bit pattern, and bit pattern is converted into the ASCII code, and ASCII code generates the ASCII value. The value of representation of A alphabet, the value of A alphabet in ASCII code is 65. हमने कीबोर्ड से ए को दबाया है, तो जो मशीन, जो अंदर का जो इंटरनल प्रोसेसिंग हो रहा है, जो मशीन इसको समझ रही है, जो मशीन की प्रोसेसिंग है, जो मशीन हमारी इंफॉर्मेशन को ले रही है, उसके लिए जो असाइंड वैल्यू है वो 65 है. और हम जैसे जैसे इस सिस्टम्स पर वर्क करते जाते हैं, वैसे ही ये सिस्टम दूसरे डेस्टिनेशन पे, अगर हमने अपने सिस्टम पे इसको ए को टाइप किया है, इंटरनल प्रोसेसिंग के बाद हमारे मेन सिस्टम पे अपीयर होगा ए. एक कर्सर ब्लिंक करता है, इस कॉर्नर पे एक कर्सर ब्लिंक करेगा यहाँ पे, और इस कर्सर के बाद यहाँ पे ए टाइप हो जाएगा. हम बी दबाएंगे तो बी टाइप हो जाएगा. किसी को अगर कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो वो पूछ सकता है. नाउ the processing of representing the symbols is, we also know that it is the coding, and coding is generally done in the internal processing inside the system. Now second question, how to data is represent, that the second number is representation of the numbers.
how we can represent the numbers in data communication network। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो मशीन है वो सिर्फ और सिर्फ जीरो वंस को ही समझती है। यहां पे अगर हम जीरो से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप काउंट करेंगे यहां से यहां तक, लास्ट तक, ये सब डेसिमल है। और यहाँ पे आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेसिमल 10 है। और ये आपने पढ़ा है पिछली छोटी सेमेस्टर्स की क्लासेस में कि हाउ टू रिप्रेजेंट द नंबर्स इन बाइनरी फॉर्म। मशीन कैन ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी नंबर्स ऑल दी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है, मतलब आप अगर पूछना चाहें तो मैं बता रहा हूं होता क्या है कि क्या जरूरत है नंबर को रिप्रेजेंट करने की, आखिर जरूरत क्या है। तो जरूरत है नंबर कैन बी रिप्रेजेंट फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन, फॉर मैथमेटिकल परफॉर्मेंस, फॉर मैथमेटिकल calculations, you have to require the numbers. So the numeric numbers from 0 to 9, these are the numbers 0 to 9 is 0 1 2 and so on 9 तक है। और it is represented in the binaries values। ये आपको पता है कि जीरो को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 0 0 0 0। 1 का बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, 0 0 0 1। ठीक है। 2 को कैसे आप कन्वर्ट करते हैं, 0 0 1 0। ठीक है। सो यू कैन से नंबर आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय बिट पैटर्न्स। However, a code such as ASCII is not used in represent the numbers। ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब आप, मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में इस पे कैरियर के बारे में बहुत डिटेल में बताया कि इसकी फील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिर्फ आपको पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत है और कंपनीज आपको हायर करेगी। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट द नंबर। पहले क्वेश्चन में ही लोग घबरा जाते हैं, सर ASCII कोड के थ्रू, क्योंकि ASCII कोड इज ओनली यूज्ड फॉर दी टेक्स्ट, वो टेक्स्ट के लिए यूज होता है, इट इज नॉट यूज फॉर दी योर नंबर्स। You always be remember this code is only, binary codes are only used to represent the numbers. And one more thing, why you have taken this binary number, because you directly converted the number in a binary values, and once these binary values are converted, the mathematical operations are easily done, right? घर पे जब आप ये लेक्चर देखेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत हो, यू कैन आस्क, राइट। नाउ मूव रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस। हाउ टू, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट,
हाउ, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप क्लास में हमसे पूछते तो हम आप खुद ही क्वेश्चन करके आपके सामने पूछ रहे हैं हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द इमेजेस, एंड you should know because you are learn this data communication course in your final year, right? So how would we store a images? इसको मैं और सरल कर देता हूं, क्या इमेज को जीरो वंस में स्टोर कर सकते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं तो वहां, आप ऑनलाइन में आपको ये लेक्चर है, लेकिन अगर आप ये सोचें क्या इमेज को जीरो वन में स्टोर कर सकते हैं, इसका आंसर है यस, क्योंकि मशीन सिर्फ और सिर्फ वंस और जीरो को ही समझती है। मशीन कैन ओनली अंडरस्टैंड दी वंस एंड जीरोस कॉम्बिनेशन, or you can say bits of stream, in other words bits of pattern. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्सेप्ट, क्या इमेज को जीरो वंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ। लेट अस assume you see here, let us assume representation of image we have having the eye. So, okay, so let us assume I would like to store this eye as a image into our PC on our system. How would we do now, and in what process are going on? Yeah, what process is taking place? I is only for the hours. We are a human beings, we can understand only I, but machine cannot understand I. Correct? Machine can only understand ones or zeros. So it is the only for us. We know that this is the I, but system cannot understand this I. Then what we do now? Then what we do now? You have seen in this white, inside the white there is a black color of I is shown. ये एक बॉर्डर के अंदर, व्हाइट बॉर्डर के अंदर ये आई हम आपको शो कर रहे हैं, और मुझको सिर्फ यही आई स्टोर करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मशीन तो सिर्फ जीरो वन समझती है, हम इंसान जीरो जीरो वंस तो नहीं समझते, हम तो सिर्फ इसको आई ही पढ़ेंगे, मशीन तो नहीं पढ़ेगी। तो कैसे इसका कन्वर्जन होगा? तो कन्वर्जन इज ओनली पॉसिबल, this conversion is only possible to frame this by, see what I'm going to say, to frame this I image into a PIX, या आप लोग सही कह रहे हैं पिस्कल, I know, in the form of पिस्कल। मैं सभी बच्चों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप जब इस लेक्चर को देखना थोड़ी देर रोक के, मैं आंसर तो मैं यहाँ दे ही रहा हूं, पर लेकिन आप जब इसको रोक के देखेंगे, पढ़ेंगे, तो पिस्कल का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल फुल फॉर्म ऑफ पिस्कल? पिस्कल मीन्स, it means
I am waiting, just given to you a few moment. If you know, it is very good. If you don't know, it's not a crime. It is, there is a time. Pi stand for picture. Picture. Pi stand for Pi. We have taken the Pi stand for picture. Or Excel, this Excel, it is the element. Element. So picture means picture elements. Picture means group of pictures, elements of pictures. Picture means pixel signified that it is the combination of the different or group of picture elements, right? That's why it is converted into the pixel. And pixel, how you can see pixel. अब मैं जो आपको बता रहा हूं, मैंने ये जो इसके अंदर जो दिखाया है, पहले तो हम इसको पिक्सल में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसका ग्रे करना पड़ेगा, ग्रे स्केल में लेना पड़ेगा, और इसको हम डिवाइडेड कर देंगे हर पार्ट को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट को, हॉरिजॉन्टल पार्ट को और वर्टिकल पार्ट को, जो इसके अंदर के हैं, इसको हम स्केलिंग करेंगे और इसको बॉक्सेस में बनाएंगे। और हर एक बॉक्स जो कि आप यहां देख रहे हैं, यहां पे आप देख रहे हो, ये नीचे के साइड में हमने इसका ग्रे किया। जब ग्रे किया तो हमने इसकी बॉक्सिंग की पिक्सल, ठीक है। और ये एक रेक्टेंगुलर, आप नहीं देखना, स्क्वायर में ये एक बना है, ये एक स्क्वायर में है, आप देख रहे हैं ऐसे स्क्वायर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, ऐसे इस तरफ भी। ये एक हॉरिजॉन्टल रो है और ये एक वर्टिकल रो है। सो देयर इज द ग्रुप ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल रोज। व्हेन दिस टू रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, याद रखना, रोज represented by R, column represented by C are multiplied to each other, they form the single frame. And frame is known as image. Each single frame is delivered the information of the single image. They have associated different groups of the picture elements in a combination of horizontal distribution and vertical distribution. ये पिक्चर एलिमेंट्स एक सिंगल फ्रेम में, सिंगल फ्रेम को हम इमेज कहते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में। और हर एक जो बॉक्सेस बन रहे हैं, जो आपका क्या कहते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस बन रहे हैं, ये इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं और सेम है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करेंगे इस फ्रेम के अंदर, कि जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स इसमें हो उतने ही नंबर ऑफ फ्रेम्स इस सब पूरे को कवर कर ले। ऐसा ना हो कि कोई फ्रेम आधा ऐसे कटा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये कट रहा है फ्रेम, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। फ्रेम जितना ऊपर है उतना ही नीचे होना चाहिए, कोई कटा पिटा नहीं, सारे फ्रेम होने। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 ऐसे रो में है और 8 ऐसे कॉलम में है। तो 8 पिक्सल इन रो and 8 pixel in column. What we shown here? We shown that
कि representation of image can be expressed in the form of Piscal. Piscal is having this specific meaning. It means picture element, that is the group of the pictures elements. Such a group of the picture element associated with different types of the colors, or each color represent the this images. So how we can convert this image in a zeros and ones? So what we do now, you see how many color you have seen here. मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से इसलिए कर रहा हूं, यहां पे दो कलर आपको दिख रहे होंगे. हाउ मेनी कलर्स आर देयर? देयर आर द टू कलर्स. वन इज, बोलिए. यस, वन इज व्हाइट और अनदर इज ब्लैक. वेरी गुड. This is the way. One is white, another is black. So the representation of this image, first we convert into gray. After the graying, we having the equal number of this square boxes. You can see जो आई हमने यहाँ लिया है वो आई यहाँ पे भी है. ठीक है, आप इसके रिप्रेजेंटेशन पे मत घबराइएगा, ये आई सेम है. अब ठीक है, अब क्या है, दिक्कत क्या है कि जो आई जहां जहां ये डार्क है, जो जो डार्क है वो बॉक्सेस को उसने कवर किया हुआ है, और जो जो जहां पे ये आई नहीं हमने लिखा है वो अभी भी वाइट है. तो देयर आर द टू कलर्स. तो अब हम इसकी जीरो वंस में कोडिंग करेंगे. तो हमने क्या कहा कि जो व्हाइट कलर है जिसको हम अगर कहें W, ठीक है, और जो ब्लैक कलर है इसको अगर हम कहें ब्लैक, इफ वी डोनेट द व्हाइट कलर बाय मींस ऑफ W, इट इज द एब्रिविएशन B फॉर ब्लैक कलर. सो जो व्हाइट कलर है उसको मैंने 1 से दिखाया, और जो ब्लैक कलर है, जो ब्लैक है उसको मैंने 0 से दिखाया. तो व्हाइट कैन बी शोन बाय दी वंस. जहां कहीं पे भी व्हाइट होगा वहां पे हम 1 लिखेंगे, और जहां कहीं पे भी ब्लैक होगा वहां पे हम 0 लिखेंगे. दिस इज द कोडिंग मेथड्स. वी कैन कन्वर्ट दिस पिक्चर elements into a zeros ones binary. We can store this images as like a ones and zeros. अब क्या कर रहे हैं कि जहां जहां आप देख रहे हैं व्हाइट है वहां वहां हम इसको 1 लिखेंगे. ठीक है, जहां जहां ये ब्लैक है वहां हम इसको 0 लिखेंगे. तो अब अपीयरेंस कैसे आएगा? नाउ सी, दिस इज, यू कैन सी, मैंने कहा शुरू में कि हमको, हमारे पास एक इमेज है आई, ठीक है, और आई को हमने ग्रे में कन्वर्ट किया. ठीक है, और अब आई को ग्रे में किया तो हमने इसकी पिस्कल के ग्रुप ऑफ पिस्कल के फॉर्म में ले लिया. हर एक ये बॉक्स है एक एक पिस्कल को बता रहा है. ठीक है, और जहां आई छपा है वो वहां पे पिस्कल को कवर कर रहा है. दिस स्क्वायर वेव्स इज शोइंग द पिस्कल, और हर एक पिस्कल जीरोस और वंस के कॉम्बिनेशन में एक बिट्स इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है. तो अब हम इसको स्टोर कैसे करेंगे? हमने क्या किया, इसकी कोडिंग की. हमने व्हाइट को 1 माना, हमने ब्लैक को 0 माना, और हमने देखा कि 8 क्रॉस 8 कितना होता है. ये बहुत भारी क्वेश्चन मैंने बच्चों आप लोगों से पूछ लिया, और मुझे पता है कि सभी लोग इसमें चैंपियन है, सब बता देंगे कितना होता है. 64. 64 बॉक्स में से कितने इसमें व्हाइट हैं और कितने इसमें ब्लैक हैं? यही कोडिंग 0 1s में होती है. और जहां जहां आप देख रहे हैं यहाँ पे व्हाइट है तो मैंने यहाँ 1 लिखा, ये 1, 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 ये भी 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1,
इसको भी 1 करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, ये भी 1 ही है। ओके, ये 1 है, 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 this is also 1, this shows the 1 1 1, this is 1, this one is also 1, this one is 1, this is 1, this one is 1, this is 1, this one is 1, this is 1, this is 1, this is 1 1 1 1 1 1। अभी देखो जहां जहां मैंने 1 लिखा है वो वहां वहां आपको यहाँ पे 1s दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं बच्चों, दिख रहा है ना। और जहां जहां ये ब्लैक है वहां पे आप ध्यान देना तो 0 लिखा हुआ है, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 है, देखो ये 0 है, ठीक है, ये 0 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 है, बेटा ये भी 0 है, 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 ये भी 0 है। अगर आप इसको देखें, ये ऐसे बनाए, इसको ऐसे बनाए, मैं क्या कह रहा हूं, ग्रुप्स ऑफ द पिक्चर एलिमेंट्स आर नोन एज इमेज एंड ईच फ्रेम हैविंग द n number of pixel and n number of pixel, each pixel is represented या can be assigned by either by 0 or 1s. It depend on the color combination. If you increase the color, you are here we are taking only the white and black, there are the two colors. अब बच्चे कहेंगे कि सर आप तो 2 कलर का बताए, 3 कलर का क्यों नहीं बता रहे हैं, तो 3 कलर ले लेते हैं, यहाँ पे 3 की जगह हम 4 ले रहे हैं, 4 ले लिया, एक वाइट है, एक ब्लैक है, एक आपका हरा है, एक रेड है, रेड ग्रीन। सो जब 4 हो तो 4 के लिए कैसे बनाएंगे, जो आप निकालते हैं 0 0 का 2 की पावर 2 में जब जाओगे, ये आपको पता है, तो 4 का करेंगे तो कितना आएगा, कितनी, ये 4 होगा, तो कितनी बाइनरी बिट्स हो जाएंगी, 2, राइट, मुझे पता है, आपको पता है। सो स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 0 0 1, ठीक है, 1 0, ओके, नाउ 1 1 गिन लो, 1 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं, ये एक है कलर, ये है आपका 2 कलर, ये आपका तीसरा कलर, ठीक है, ये जो है रेड वाला, ये तीसरा कलर, और दिस वन इज द फोर्थ कलर। आप किसी से भी दिखा सकते हैं, ये तो आप पे है, ये तो हम अपने मन से दिखा रहे हैं। मैंने व्हाइट को, सफेद को 0 0 से दिखाया, सो इट इज शोन बाय द व्हाइट कलर, ओके, ठीक है। और मैं 0 1 को ब्लैक से दिखा रहा हूं, तो मैंने ब्लैक कर दिया इसको। आप इसको घर पे ट्राई करके देख लीजिए, कोडिंग आपकी, इसीलिए इसमें बहुत सारा स्कोप है, इसमें इमेजेस कलर को चेंज कर सकते हैं, सिर्फ बिट को असाइनमेंट चेंज करके, जो जस्ट चेंज 1 0 0 1, अब इसका असाइनमेंट चेंज कर दो, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको दूसरा कलर कर दे दो, इसको ये वाला कलर दे दीजिए, आप कर सकते हैं। 1 0 1 0 आपका रेड है, ओके, 1 0 इज रेड, और ये आपका ग्रीन है,
ये आपका ग्रीन है, ठीक है। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे आप चाहें तो ये आप पे है, आप सोचें, चाहे आप इसको 0 0 को ग्रीन कर दीजिए, कलर चेंज हो जाएगा, पर ओरिजिनल इमेज रहनी चाहिए। ये सब प्रोजेक्ट का विषय है, लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे। हम देखेंगे कि हमने असाइन किया 0 0 को इससे, वाइट को, 0 1 को ब्लैक से, 1 0 को रेड से, और ग्रीन को 1 1 से। सो क्या होगा, आप देखिए और बताइए क्या हुआ। यहां जहां ये वाइट था, आपने असाइन किया था वाइट को 0 0 से, राइट, वाइट, और 0 1 आपका था ब्लैक, 1 0 आपका था रेड, ठीक है, और 1 1 आपका था ग्रीन। घबराओ नहीं, देख लो, यही था, करेक्ट ना। 0 0 वाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन। ये 0 0 कहाँ से आया, मैंने इससे 2 की पावर n वाले फार्मूले से कितने नंबर ऑफ बिट्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे उससे लिया, ठीक है। टोटल 4 थे, 4 के लिए निकाला मैंने, ठीक। अब आप देखो, यहां ये सब वाइट है, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से, सॉरी, यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, ठीक है। तो जहां जहां आप वाइट देख रहे हैं, जहां 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 वाइट देख रहे हैं, वहां वहां मैंने जो बिट का सीक्वेंस है 0 0 लिया हुआ है। तो सी at this piscal, at this piscal, at this piscal is represented by 0 0. Here we have assigned the values, so we write here 0 0 0. जहां जहां मैंने रेड किया वहां 0 0। अब जहां रेड है, this is red और this one is red, so it is represented by the binaries value 1 0 1 0, और एक यहाँ पे दो जगह यहाँ पे है, so it is represented by the 1 0 and 1 0. Now the green image is also having the binary values, that is 1 1 1 1 1 1 1 1, ओके। अब आप देखो, ब्लैक को हमने किससे किया, 0 1 से, तो सो इट इज द ब्लैक। ये मशीन समझता है, ये खाली मशीन समझता है, हम ये समझते हैं। सो ये इंटरनल कन्वर्जन है, ये डेटा का कन्वर्जन है, इसलिए आप लोग भूलिएगा नहीं, जो बता रहे हैं इसको करेंगे, इसका असाइनमेंट हम आपको देंगे, इसलिए प्लीज। अब मान लो एक कंटिन्यूअस, जैसे मान लो यही लोगों की एक पिक्चर है, इसमें कई सारे कलर्स हैं, कई कलर्स का कॉम्बिनेशन है। ऐसे में हम यूज करते हैं दो कलर मॉड्यूल्स, एक होता है रेड ग्रीन ब्लू कलर मॉड्यूल्स, एक होता है ज्ञान येलो मैजेंटा, ठीक है। और ये जो कलर की आप स्ट्रिप देख रहे हैं, अगर आप रेड ग्रीन ब्लू देख रहे हैं, तो 0 से 255 है, 0 से, ये पिक्चर के जो कलर का जो हमने वैल्यूज लिया हुआ है 0 से 255 है, इसका भी 0 से 255 है, इसका भी 0 से 255 है। तो इफ यू मल्टीप्लाइड बाय दिस 3 कलर, आप इन 3 कलर को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे
तो आपको डिफरेंट शेडेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स मिल जाएंगे। आप देखो इसको, वी मल्टीप्लाइड बाय, ये जीरो से स्टार्ट करेंगे तो ये भी काउंट होगा, ये हो जाएगा 256, इट बिकम एज ए 256। सो तीन कलर हैं, 256 मल्टीप्लाइड बाय 256 मल्टीप्लाइड बाय 250, इट्स अराउंड 60 million color can be represented by this color modules. How many color you have to distribute on a one frame? That is the 60 million color can be framed in one frame in a number of group of physical elements, physical groups, right? तो कॉम्बिनेशन जो कलर का है, जो 1011 1000 1, ये है 0000111110, ये आपके इसके लिए 101001, ये रेड के लिए ये है, रेड के लिए ये है, ग्रीन के लिए ये सीक्वेंस कोड यूज करते हैं, ब्लू के लिए ये। अगर ये इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 मिलियन कलर्स आप जनरेट कर लेंगे वन ही एक पूरी पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए। ओके, नाउ आप लोग इस लेक्चर को देखिएगा। दिस इज द हाउ टू डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड। You can see the data, how you can represented the data. One is also available, audio and video. Audio and video. Audio video is the sequence of this images. The audio is the analog signal, video is the sequence of the this images. The repetition of the motion of the picture elements, it becomes as a video. When you saw the picture, you having convert this picture in by applied the analog to digital converter, ठीक है? After the converting analog signal into digital, you are having the digital values zeros and ones, and zeros or ones are converted into analog signals. Analog signals are again sampled, and they are having that different types of sampling mechanism, and each sampling mechanism has described in the previous classes. When these both are mixed to each other, they are forming the videos. So thank you very much. This is the end of the third lectures, and I hope you are safe at the your home, and you are please use your hand sanitizer or keep safe at the home. Thank you very much once again.